Whiteboard visible? Yes, sir. Sound is clear? Yes. Yes, sir. Good. Yes, sir. So we were talking about, now mute your mics. So we were talking about the conic sections. So yesterday you saw that how two side right circular cone will give you different conic sections. Okay, by taking a plane. You take a plane and a cone and then take the cut of this plane at different angles. You will be getting different conic sections. We are interested in three conic sections: parabola, ellipse, hyperbola, or you can take straight lines also, a pair of straight lines. All these things are there. So the general equation of second degree, it was ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c. Okay, this is the equation. Which represents conic section. Okay. Now, so here this nature, we have discussed the nature like this delta. The nature of conic we can find by taking these three quantities. This I can take A, B, C. Delta is A, B, C. H, G. First row H, G. First column H, G. F, F. These are the coefficient of A, B, C, X, Y, X square and so on. This is delta. This D is AB minus H square. And this P is A plus B. So different cases are there. If this delta is equal to 0, suppose it is your equation number 1, this general equation. If delta is equal to 0, then equation 1 represents, this represents, क्या represent करेगा? A pair of straight line. Straight line. ठीक है? This represents a pair of straight lines. And these lines will be parallel. Pair of straight lines पे line may be parallel. Lines are parallel. This is a short symbol for parallel. If H square is equal to AB and lines will be perpendicular if A plus B is equal to 0. Okay. These are the conditions which you should keep in your mind. If some conic question is given to you and you can see that the coefficient of x square plus y is coefficient of y square, it is 0 and plus delta is equal to 0, there you can see that it will be representing a pair of straight lines which are perpendicular. And if it h square is equal to AB, then it will be representing a pair of parallel lines, provided delta is 0. अगर delta 0 है तब. Second, if delta is not, this thing I have discussed yesterday or no? No, sir. No, sir. No discuss study. ठीक है. हाँ, तो keep it mind all these concepts है ना. In objective type problems, in competitions, these concepts are very important. So if delta is not 0 now, so delta not 0 में pair of straight line तो होगा नहीं है. Now what are the possibility? Now suppose coefficient of x square is equal to coefficient of y square. A is equal to B and H is equal to 0. तब क्या represent करेगा? Any idea? H 0. Circle. Yes. Then it will represent a circle, because in circle always coefficient of x square and coefficient y square should be same and there is no product term. So this represents a circle. Equation 1
represents a circle. ठीक है, अब उसका सेंटर जो है हम निकाल सकते हैं, फिर -g -f होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, रेडियस फाइंड कर सकते हैं, बट इट विल बी अ सर्किल. थर्ड केस, suppose delta is not 0 and now there are remaining 3 conic sections, parabola and hyperbola and ellipse. So delta is not 0. Now 3 cases are there, you can take 3 cases. Delta not 0 में d 0, d is 0 and d 0 का मतलब क्या हुआ, h square is equal to ab, है ना, that means your ab is equal to h square, then it will represent a parabola. Parabola, sir. Yes, then one represents parabola. ठीक है, फर्स्ट कर्व, फर्स्ट कोनिक, फर्स्ट प्लेन कर्व, parabola. Second, if d is not 0 but d is coming negative, d negative means your ab greater than h square, that means ab is strictly greater than h square, so Ellipse बनेगा सर. ellipse बनेगा. ठीक है, d greater than 0 पर it is ellipse. डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ellipse. ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से आप भी अपने, you can write in some paper and you can paste it in your study table or in your study room. ये चीजें लिख के रखेंगे सामने तो आपको याद रहेगी. ठीक है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये सब, हो सकता है याद भी हो आपको. लास्ट इज इफ d लेस देन 0, तो लास्ट हाइपरबोला है ना, वेयर ab लेस देन h स्क्वायर, हाइपरबोला. तो सिंपल है, अगर डेल्टा आपका डिटरमिनेंट 0 आ गया तब तो स्ट्रेट लाइन है, 2 केस है. अगर डेल्टा नॉट 0 है तो 4 कोनिक्स आर देयर, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला. उसकी कंडीशन आपकी ये है. सर्किल की आपको पता है क्या होता है, a is equal to b is equal to 0. बाकी डेल नॉट 0 में अगर d 0 है तो पैराबोला, ग्रेटर देन 0 एलिप्स, लेस देन 0 हाइपरबोला. इसमें एक कंडीशन और है कि अगर p is equal to a plus b is equal to 0, अगर a plus b का सम 0 आ जाए, है ना, a plus b का सम का मतलब क्या हुआ कि दे आर a is equal to -b. डेल्टा नॉट 0 में, अगर डेल्टा 0 में a plus b 0 आ रहा है, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर, एंड इफ दिस डेल्टा नॉट 0 पे a plus b 0 आएगा, देन द कोनिक विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. देन कोनिक इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है पता है आपको? अगर जैसे मैं ये ले लूं xy is equal to some constant where c is some positive, so it is looking like this in first and third quadrant. तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. xy is equal to c is the equation. ठीक, this is rectangular hyperbola. So it is not cutting your x-axis, y-axis, it is not cutting x-axis, y-axis, and these the curve are meeting the x-axis and y-axis at infinity. ठीक है, so these are the special cases. Is it clear? है ना, this page is important, keep in mind. If you want you can take the screenshot of this picture, this page. Next is intersection. Intersection of a line with a conic, of a line and a conic. So coordinate geometry में all the time you will be studying same type of things for different curves, है ना. पीछे भी आपने पढ़ा होगा, तो पहले आपने इक्वेशंस पढ़ी कि what is the general equation for any curve, then के what are the intersection points of two curves, a line and a curve. So that's the same thing, intersection of a line and a conic. Suppose you have some conic, कोई भी conic given है आपको, है ना, जरूरी नहीं ellipse हो, तो I am just taking any conic and one line is crossing this conic. Okay, तो अगर इसे क्रॉस करेगी तो you know it will be crossing
कम से कम एक पॉइंट पे तो करेगी, लेकिन अभी हम इसकी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आई विल सी कि इट क्रॉसेस एनी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एनी कोनिक एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पे उसे इंटरसेक्ट कर सकती है ना, एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। फिगर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी लाइन अगर आप ड्रा करेंगे तो 2 से ज्यादा कभी नहीं होगा कि कट करेगी, है ना, क्योंकि कोई भी कर्व आपका ऐसे नहीं है कि यूं रोटेट होके आ रहा हो। यू डोंट हैव एनी कोनिक लाइक दिस, या तो यू हैव कोनिक लाइक दिस पैराबोला, और यू हैव लाइक दिस हाइपरबोला, और यू हैव लाइक दिस इलिप्स जो मैंने प्लॉट किया, या सर्किल इसका स्पेशल केस है। तो एनी लाइन intersects the conic at most 2 points। अगर ये प्रूफ करने के लिए भी आता है तो आपको वही करना है जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। प्रूव दैट एनी लाइन intersect the conic at most 2 points। So let us suppose I have a straight line passing through a point P। Let a straight line तो कुछ चीजें मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ऐसे ST स्ट्रेट लाइन लिख दिया बिकॉज आई एम pronouncing the word also, तो आपको क्लियर है, स्ट्रेट लाइन passing through। Okay, sir. No problem. If we had, then we ask. yes good। हाँ, क्योंकि थोड़ा टाइम बचेगा ना, एक चीज लिखूंगा तो फिर। so let a straight line passing through P x dash y dash। तो P हमने पॉइंट ले लिया कहीं बाहर, ये पॉइंट P आपका कहीं यहाँ पर है x dash y dash, ठीक है। it is passing through this point and cuts the conic, cutting या crossing the conic, suppose at A, and अभी हमने A पे लिया है, एक पॉइंट लिया A, and suppose Q, and let QXY be another point here somewhere। क्योंकि ये पॉइंट तो हमें निकालना है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, यहाँ कट करेगी और कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो हमें बस ये पता है कि अगर लाइन, यू नो कि इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यू नीड व्हाट, कि पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स कम से कम पास होना चाहिए। या तो आपको उसका स्लोप पता हो कि स्लोप क्या है और पासिंग थ्रू अ पॉइंट, या आपको ये पता हो कि इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, cutting the conic A and let QXY be another point on the line AB, another point on the line। इस लाइन को अगर हम कुछ नाम PAB कह देता हूँ, PAB, ठीक है, इस तरीके से पास हो। अब A अगर हमें डिवाइड कर रहा है, सपोज हमने कहा कि let A divides this line in the ratio lambda is to 1, ठीक है, क्योंकि I want to find this segment formula। So let lambda A divides PAB in the ratio lambda is to 1, ठीक है, PA is lambda and AB is 1। So you know that what is the coordinate of A then? A के coordinate क्या होंगे पता? What about A? अगर मैं ये coordinate लिखना चाहूँ तो लैम्डा क्या करते हैं, क्रॉस, Yes, sir. लिख लेंगे by क्या section आएगा? formula. बाईस, तो क्या होता है लैम्डा इंटू एक्स, बताइए। Yes, sir. Lambda into into x x plus 1 into plus 1 into x dash x dash upon upon lambda plus 1. Lambda 1, plus 1. yes 1 plus lambda, lambda 1 plus plus lambda 1. एक ही बात। अब y Yes, sir. कोऑर्डिनेट सिमिलरली लैम्डा y, Y plus y dash upon 1 plus lambda. जब a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए x x डैश के तौर पे, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट लाइंग ऑन द कोनिक, तो दिख ही रहा है ना, बट दिस पॉइंट a lies on the कोनिक। कोनिक हमारा वही है जो इक्वेशन लिखी थी, है ना, कोनिक तो हमारा जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर
ax square plus 2hxy plus Excuse by. me. Yes. सर Yes. ऊपर आपने लिखा है कि लेट ए डिवाइड्स पी ए बी इन द रेशियो लेमडा इज टू 1, तो आपने यानी कि पी ए जो है वो लेमडा है और ए बी जो ए क्यू जो है वो ना 1 है। आप हाँ, क्यू का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ए बी 1 है ना। पी ए क्यू है, ठीक है। अब ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक है। तो पी ए इज टू ए क्यू लैम्डा इज टू 1 है। अब ठीक है, क्यू होगा वहाँ, ठीक है, करेक्ट, सही पॉइंट है आपका बिल्कुल, क्योंकि हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने थे नोन कोऑर्डिनेट्स में, तो हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स नोन थे, ठीक है। सो नाउ ए लाइज ऑन द कोनिक, तो क्या होगा भाई, इसको मैंने नंबर 1, चलो यहाँ पे नंबर 1 कर दे रहे हैं इस उसमें, तो इट विल बी सेटिस्फाइंग दिस। सो दिस implies that I can put the point here, a of lambda x plus x dash upon 1 plus lambda whole square plus 2h, सिंपल ज्योमेट्री है, पॉइंट इज सेटिस्फाइंग दिस, तो पॉइंट को आपने पुट कर दिया क्वेश्चन के अंदर, प्लस 2h lambda x plus x dash upon 1 plus lambda and y के साथ में, so you have lambda y plus y dash over 1 plus lambda plus by square, so lambda y plus y dash upon 1 plus lambda whole square plus 2gx plus 2fy y dash upon 1 plus lambda plus c is equal to 0. Okay, and now you can see I can take LCM 1 plus lambda whole square, first three terms में यहाँ पर भी 1 plus lambda 1 times है, and I can shift it to right hand to 0, है ना। So what will be you getting? I can write by taking LCM 1 plus lambda whole square, yeah, you can say by multiplying by 1 plus lambda square, so you will be getting a lambda x plus x dash square, से न्यूमरेटर का टर्म आएगा यहाँ पे, प्लस 2h lambda x plus x dash lambda y plus y dash and plus by square means lambda y plus y dash square plus 2g। अब यहाँ पर g पे ओनली 1 पावर थी, है ना, आपने लिया 1 plus lambda whole square, तो एक 1 plus lambda will be coming in the numerator, so you will be having 2g lambda x plus x dash 1 plus lambda, similarly 2f y, so lambda y plus y dash 1 plus lambda and c was the constant, तो c के साथ the whole square term will be coming is equal to 0. Okay, this implies, अब इसको I will open and I will make a polynomial in lambda, so you can see lambda square का terms आएगा यहाँ पर, ये lambda square terms and lambda के terms आएंगे यहाँ से और कुछ constants आएंगे, तो this when you will solve it and arrange you will be getting lambda square, देखो lambda square जैसे एक टर्म लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, बाकी वैसे लिख दूंगा। lambda square के साथ क्या आएगा देखिए जरा, ax square है ना, और यहाँ क्या आएगा 2h xy एंड प्लस by स्क्वायर, पूरा s आ जाएगा देखिए अगर आप, है ना, पूरा वो आएगा नहीं आएगा, अगर इसको मैं s कह दूं, इसको हम रिप्रेजेंट कर दें s से, दिस इज योर s सपोज, तो दिस यू विल बी गेटिंग लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा s प्लस ट्वाइस लैम्डा t प्लस s डैश इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन विल बी कमिंग where s is your equation number, equation 1, जो 1 इक्वेशन थी आपकी वही ax स्क्वायर t will be what, ax x dash, लैम्डा कोएफिशिएंट क्या होगा देखिए जरा, यहाँ लैम्डा कोएफिशिएंट क्या आएगा देखो, फर्स्ट लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स एक्स डैश, तो लैम्डा कोएफिशिएंट क्या है ए एक्स एक्स डैश, क्योंकि 2 मैंने साथ में बाहर ले लिया ऑलरेडी, तो इट विल बी कमिंग ए एक्स एक्स डैश प्लस एच एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई प्लस
by y dash plus g x plus x dash plus f y plus y dash plus c ना। यहाँ पे s जीरो नहीं लिख रहे हम, तो s है ना, ये t आएगा। और व्हाट इज s डैश मींस योर कांस्टेंट टर्म्स विदाउट लैम्डा। देखिए विदाउट लैम्डा टर्म क्या होगा, व्हाट इज विदाउट लैम्डा टर्म हियर, बोलिए फर्स्ट टर्म में। क्या हो सकता है, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर। तो जो एक्स डैश स्क्वायर है उस पर लैम्डा नहीं आ रहा है, तो व्हाट इज एक्स डैश, ए एक्स डैश स्क्वायर। सिमिलरली हियर 2h एक्स डैश वाई। तो बेसिकली क्या होगा कि इसमें एक्स डैश वाई डैश रिप्लेस कर दें, वही आपके पास एक्स डैश टर्म आ रहा होगा, प्लस बी वाई डैश स्क्वायर प्लस 2g एक्स डैश प्लस 2f वाई डैश प्लस c। ठीक है, ये टर्म्स अपने आप यहाँ पर आप जब अरेंज करेंगे यू विल सी एस टी एस डैश विल बी कमिंग दिस। ठीक है, तो दिस इक्वेशन, अगर इसको मैं नंबर 2 डाल दूं, तो दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्डा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होगा, इट विल बी हैविंग 2 रूट्स। So here equation 2 is a quadratic equation in lambda, so it will have at most 2 roots. So thus 2 has at most 2 roots, है ना। at most 2 roots क्यों लिखता हूं मैं भाई, 2 से ज्यादा तो होंगे नहीं क्वाड्रेटिक है, और 2 से कम भी हो सकते हैं जब आपके रूट्स रिपीटेड रूट्स आ जाते हैं। when discriminant is 0 तो रूट क्या होता है आपके पास, रूट्स आर इक्वल, तो एक रूट भी आ सकता है ना। so it has at most 2 roots। तो 2 रूट्स का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि लैम्डा में क्वाड्रेटिक है तो लैम्डा की आपके पास 2 वैल्यू पॉसिबल है। इट मींस व्हाट, कि ये जो लाइन है इट विल इंटरसेक्ट द कोनिक एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, क्योंकि लैम्डा की 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी तो एक वैल्यू रखेंगे तो उससे ए निकलेगा, दूसरी वैल्यू निकलेंगे उससे दूसरा पॉइंट निकलेगा, दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, वो बी होगा आपका। इज इट क्लियर, बताइए। तो here you can write this implies that every straight line intersects a conic one at most 2 points। अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो आपको यहाँ तक लिख के ये लिखना पड़ेगा चीज़ें। अब यहाँ पर यू नो देयर आर पॉसिबिलिटीज फॉर द रूट्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स हैं, रूट्स में भी रियल एंड इक्वल, रूट्स में भी इक्वल, रूट्स में भी इमेजिनरी, 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना। तो अगर रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो क्या हो जाएगा कि लाइन 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। फर्स्ट, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, उस केस में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, है ना। यहाँ बी स्क्वायर कितना है, ये 2 है। डिस्क्रिमिनेंट अगर आप चेक करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो होता है। तो टी यहाँ पर लैम्डा के टर्म में है आपके पास, तो 2t है, तो b इज 2t, तो 2t मीन्स 4t स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4s डैश। ये इसका आपके क्या आएगा, ये डिस्क्रिमिनेंट आएगा। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा से लिख दें, डेल्टा वहाँ पे डिटरमिनेंट के लिए यूज कर रहा था, है ना, ठीक दिखा है, बी स्क्वायर 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो नाउ अगर ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, implies that your line meets the conic at different points। This implies that line intersects the conic at 2 different points, 2 different points। Second case में possible है, roots are real and equal,
That means your b square minus 4ac is equal to 0. Roots are real and equal. उस केस में क्या हुआ? The line meets the conic at a coincident point. The line meets the conic at a coincident point. मतलब कि दोनों पॉइंट आपके एक ही जगह आ गए, कोइंसिडेंट पॉइंट. तो उस केस में क्या होगा कि अगर यहाँ पे मीट कर रही है एक ही पॉइंट पे, तो वो लाइन फिर आपकी बेसिकली क्या होगी, एक्चुअली टेंजेंट बन जाएगी, एक ही पॉइंट पे कट कर रही होगी, है ना. टेंजेंट की कंडीशन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. थर्ड पॉइंट इज इमेजनरी. इमेजनरी भी आ सकता है इफ रूट्स आर इमेजनरी. इमेजनरी मतलब